الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. آیت نمبر 214. الا ان نصر اللہ قریب یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ام حسبتم کیا تم خیال کرتے ہو گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ کے داخل ہو جاؤ گے جنت میں ولما یاتکم اور جب کہ نہیں پہنچی تمہیں نہیں آئی تمہیں مثل الذین خلو مثالیں ان لوگوں کی خلو جو گزر چکی من قبلکم تم سے پہلے مستہم البأساء ان کو پہنچی تھی باسا تنگ دستی والضراء اور بیماریاں وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول کہہ اٹھا رسول والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے تھے معہ اس کے ساتھ متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب بے شک آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. پچھلی آیات میں آپ نے یہ بات سنی ہے پڑھی ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے ایک ہی طریقے پر دنیا کا آغاز ہوا توحید پر نظام توحید پر. اللہ نے پھر جب لوگوں میں اختلاف ہوا تو اللہ نے پیغمبر بھیجے ان پر کتابیں نازل کی تاکہ لوگوں کے معاملات کے فیصلے شریعت کے مطابق ہوں. تو جن لوگوں نے اختلاف کیا انہوں نے اپنی دنیا پرستی کی ہوس میں شریعت کو بالائے طاق رکھا اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنے من چاہے طریقے اختیار کیے زندگی کے معاملات میں. تو فرمایا کہ پھر بھی ایسے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود رہے جن کو اللہ نے جو ہدایت دی وہ باوجود گمراہی کے ماحول میں بھی ہدایت کی راہ پہ چلتے رہے. لیکن جب برائی اور نیکی دونوں آمنے سامنے ہو تو کشمکش تو ہو ہی جاتی ہے اس لیے کہ نیکی برائی کو گوارا نہیں کرتی اور برائی نیکی کو گوارا نہیں کرتی تو کشمکش یقینی ہوتی ہے. لہذا لوگ کشمکش سے بھی گزرے. اور پھر یہ بات یاد دہانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے. سورہ روم ہے غالباً اس میں فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو احسب الناس کیا خیال کرتے ہیں لوگ ان یترکوا سورہ عنکبوت احسب الناس کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کریں اور ان پر آزمائشیں نہ آئیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی جو اس راستے پر آئے آزمائشوں سے گزارا اور اس لیے گزارا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
वला यअलमन्नल काज़िबीन, अल्लाह सच्चे खरे और खोटे को अलग करना चाहता था। जो खोटे थे वो भाग गए और जो खरे थे वो डटे रहे। सूरह अल हज में इसी बात को एक और पैराए में बयान किया। फरमाया वमिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, लोग में से बाज वो भी हैं जो अल्लाह को किनारे पर पूजते हैं। किनारा किस चीज का? ये एक किनाया है इस बात से, आगे उसकी तफसील कर दी। याबुदुल्लाह अला हर्फ इन असाबत खैर, इत्माना भी, अगर तो इस दीन पर चलने में कुछ मिलता है, कुछ काम बनता है दुनिया का, तो फिर ठीक है, फिर दीनदार बन जाओ। वाइन असाबत फितना, और अगर दीन पर चलने में आजमाइशें आती हैं तो इन कलब अला वजी, तो फिर जाता है अपने एड़ियों के बल। खसिरत दुनिया वल आखिरा, ये दुनिया और आखिरत दोनों में घाटे में आ, न खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो यहाँ ये बात समझा दी गई कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम यूं ही ठंडी ठंडी छाओं में जन्नत में पहुंच जाओगे? नहीं, यहाँ धूप भी बर्दाश्त करनी होगी, सर्दी भी, गर्मी भी, बीमारी भी, तकलीफ भी, मुखालफत भी, मुजाहिमत भी, सारी चीजों से गुजर के जाना पड़ेगा। इसलिए कि हक को बातिल कभी भी ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करता। वो कोशिश करता है, वो साजिश करता है, वो मंसूबे बनाता है कि नेकी का रास्ता रोका जा सके, बहाने देता है कि हराम खाने के लिए ये बहाना बना लो, झूठ बोलने के लिए ये बहाना बना लो, किसी का हक मारने के लिए ये तरीका इख्तियार कर लो, रिश्वत का रास्ता अपना लो। तो ये सारी चीजें बातिल की तरफ से हक के रास्ते की रुकावटें बनती हैं। फरमाया कि मस्सतहुमुल बासा व ज़र्रा, यहाँ दोनों चीजों का जिक्र किया है, तंगदस्ती भी, बीमारी भी, ये भी कह देंगी। वजुलजिलू, ये तीसरी चीज जो जिक्र की है, हिलाए गए। किस चीज से? उन आजमाइशों से या मुजाहिमत और मुखालफत की वजह से जो उन पे तकलीफें आई, उनकी वजह से हिल कर रह गए एक दफा और कहने लगे हत्ता यकूल रसूल, आम लोग नहीं, पैगंबर भी कह उठा और जो उसके साथ ईमान लाए थे कि मदद अल्लाह की कब आएगी। तो क्या पैगंबर को अल्लाह की मदद पर यकीन नहीं था कि वो ये बात कह उठे? ऐसी बात नहीं है। पैगंबर को बहुत यकीन होता है, इतना बड़ा यकीन कि कोई दूसरा आदमी उसके बराबर नहीं ला सकता। मूसा अलैहिस्सलाम समुद्र के किनारे गए और पीछे से फिरौन की फौज आ गई, तो बनी इसराइल ने कहा मूसा मरवा दिया, आ गए ना फिरौनी, अब खैर नहीं हमारी। अच्छे भले मिस्र में रह रहे थे, चलो बेगार भी देते थे, सारे काम करते थे, पर ये हाल नहीं था। अब तो हम मारे गए, इन्ना लमुद्रकून, हम पकड़े गए। और पकड़ने के बाद फिरौन क्या करेगा उसका तस्वर भी नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था? कल्ला इन्नमा या रब्बी सयाहदीन, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, मेरे साथ मेरा रब है, सयाहदीन, वो जरूर राह दिखाएगा। और उसी वक्त अल्लाह की तरफ से वही आ गई, मेरे पैगंबर लाठी मारो समुद्र पे। समुद्र पे लाठी मारी और पानी फट गया, रास्ता बन गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में हैं, मुखालिफिन गार के ऊपर पहुंच गए, वो नजर आने लगे। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे घबरा कर, या रसूलल्लाह ये तो पहुंच गए, ये तो ऊपर, अब नीचे झांक के देखेंगे तो हम नजर आ जाएंगे, तो हम तो इनकी गिरफ्त में आ जाएंगे। फरमाया मेरे साथी ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है, इतना यकीन कामिल है। तो यहाँ ये बात जो कही गई, इसकी वजह यह है कि जब हालात बहुत संगीन हो गए, तकालीफ बढ़ गई, मुजाहिमतें शिद्दत इख्तियार कर गई और मुखालफत ईजा की सूरत में ढलने लग गई, तो फिर उस वक्त तो लोग घबरा तो जाते हैं, इंसान तो इंसान है। तो इसलिए कि अल्लाह ने वक्त नहीं बताया कि मैं कब आऊंगा तुम्हारी मदद के लिए, इनको पकड़ूंगा कब, इनका रास्ता कब रोकूंगा, ये अल्लाह ने मुकर्रर नहीं किया। तो वो पूछने लगे कि वो वक्त कब आएगा, अब तो अखीर हो गई है मुखालफत और मुजाहिमत की। तो साथ ही जवाब भी आ गया, अला इन्न नस्रुल्लाहि करीब, घबराओ नहीं,
अल्लाह की मदद करीब है, बस आया ही चाहती है। और ये बात तारीख कुरान मजीद जो बयान करता है अक़वाम माज़िया की, उनमें ये बात बिल्कुल साबित है कि जब कोई कौम सुरख लकीर अबूर कर लेती है तो फिर अजाब आ जाया करते हैं। किसी शायर ने कहा था, हेज कौमेरा खुदा रुसवा न कर दो, ता दिले साहिब दिले नायत बदर। अल्लाह किसी कौम को उस वक्त तक जलील नहीं करता जब तक कि वो अल्लाह वालों को दुख न दे। जब अंबिया पर तकलीफों के पहाड़ तोड़े जाने लगे तो फिर अल्लाह का गुस्सा हरकत में आ गया, फिर कौमें बच नहीं सकी। तो इसलिए फरमाया, अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब यसअलूनका माज़ा युनफिकून। ये थोड़ी सी तसल्ली वाली बात जिक्र करके कि घबराओ नहीं, हक के रास्ते में चलते रहो, अल्लाह की मदद आ ही जाती है। देर तो नहीं, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। उसमें भी कोई हिकमत होगी कि ताखीर क्यों होती है, उसके पीछे भी कोई हिकमत कार फरमा होती है। इसलिए कि फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। तो फरमाया कि अब तसल्ली देने के बाद अब बात हो रही है इन्फाक की, जो पहले भी चला था। किताल और इन्फाक का जिक्र पहले शुरू हो गया था, दरमियान में ये तसल्ली वाले अल्फाज और उनके हालात का तबसरा देकर अब फिर इन्फाक की बात सवाल की सूरत में पेश आ रही है। सहाबा ने पूछा कि माज़ा युनफिकून, हम क्या खर्च करें। कुल मा अनफक़्तुम मिन खैर, कह दीजिए जो कुछ भी तुम खर्च करना चाहो माल से। यहाँ खैर के माने माल के हैं, वैसे खैर के माने क्या है, भलाई के। फलिल वालिदैन, बस वालिदैन पर खर्च करो, वल अक़रबीन, करीबियों पर करो, वल यतामा, यतीमों पर करो, वल मसाकिन, और मिस्कीनों पर करो, वब्न सबील, और मुसाफिरों पर करो। अब सवाल ये था कि क्या खर्च करें, जवाब आया कि कहाँ खर्च करें। ये फर्क क्यों रखा, इससे एक इशारा करना मकसूद है कि क्या खर्च करने से पहले ये समझ लो खर्च कहाँ करना है, कहीं गलत जगह खर्च न कर दें। इसलिए जगह जहां खर्च करना है उसकी अहमियत बढ़कर है, तो उसको पहले जिक्र कर दिया। हालांकि सवाल इतना ही था कि खर्च क्या करें। फरमाया, वमा तफअलू मिन खैर, जो भी तुम भलाई का काम करोगे फइन्नल्लाह बिही अलीम, अल्लाह उसको जानता है। अब इन्फाक की बात तो हो गई, तो फिर आगे किताल की बात। कुतिबा अलैकुमुल किताल, तुम पर लाजिम किया गया है किताल। अच्छा, ये किताल हर वक्त लाजिम नहीं होता, ये बात समझ लीजिए कि किताल लाजिम हर वक्त नहीं होता। ये जब कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि हक के रास्ते के अंदर रुकावटें खड़ी कर दी जाएं और अहले हक को बिल्कुल मजलूम बना दिया जाए और उनकी हैसियत को ख़त्म करने की कोशिश की जाए, तो फिर उस वक़्त किताल की इजाज़त मिलती है। और उसकी तफसील मैंने इब्तिदा में अर्ज कर दी थी कि पूरे 13 साल मक्की में किताल का हुक्म नहीं आया, इजाज़त नहीं थी, लड़ने की इजाज़त नहीं थी। 13 साल के बाद जब रियासत वजूद में आ गई इस्लाम के नाम पर, अब किताल लाजिम हो गया, क्योंकि फर्द से ज्यादा अहमियत रियासत की है। ये बात ज़हन में रखें, फर्द अहम नहीं होता, रियासत अहम होती है जो सिस्टम को लेके चलती है। और सिस्टम ही असल मकसूद है। इंसानों के लिए भी तो सिस्टम लाया गया ताकि वो उसके मुताबिक जिंदगी बसर करें। तो फरमाया कि तुम पर किताल लाजिम किया गया। तो जब मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो तो उस वक़्त किताल फर्ज हो जाता है। ये फर्ज किफाया होता है। कुछ लोग अगर जाकर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दुश्मनों से जंग करें तो उस सूरत में फिर कुछ लोगों का भी जाकर शरीक हो जाना सब की तरफ से किफायत कर जाता है। एक वक्त वो आता है जब रियासत के ऊपर हमला हो जाए तो फिर हर आदमी के लिए वो फरीजा बन जाता है। अब ये उसके अपने मुख्तलिफ दर्जे हैं, कोई असला फराहम करेगा, कोई बनाएगा, कोई ले जाएगा, कोई उसको चलाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर बनाने वालों को भी दुआ दी, तीर ले जाने वालों को भी दुआ दी और तीर चलाने वालों को भी दुआ दी।
क्योंकि सब उस जिहाद के अंदर बाकायदा शरीक तस्वर किए जाएंगे। फिर इतनी ही बात नहीं है, जब अल्लाह के रास्ते में एक लश्कर जाता है तो जो लोग नहीं जा सकते वो भी जिहाद में शरीक हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुरान मजीद में भी एक जगह इशारा मौजूद है कि तुम जो वादियां तय करते हो, पहाड़ अबूर करते हो और मैदानों में उतरते हो, तो तुम्हारे पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो माजूर हैं, जो मैदान में जाने के काबिल नहीं हैं, वो तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं, वो भी तुम्हारे साथ उस अजर में बराबर के शरीक है। इसलिए दुआ भी एक हथियार होता है। तो आदमी और कुछ ना कर सके तो अल्लाह के रास्ते में लड़ने वालों के लिए दुआ ही कर लिया करे, ये भी उसका एक हिस्सा बन जाएगा। फरमाया लाजिम तो कर दिया गया, वो वकुलकुम, हालांकि वो तुम्हें पसंद नहीं है। लड़ना तो किसी को भी पसंद नहीं होता, लड़ाई मार कुटाई तो कोई अच्छा मंजर तो नहीं होता बताए। अभी मैं आ रहा था तो वहाँ मैदान जंग बना हुआ था मार्केट के बाहर, तो ये कोई अच्छा माहौल नहीं होता जंग का। लेकिन जंग वलौला दफुल्लाह नास बाज़ुम बिबाज़, अगर अल्लाह बाज को बाज के जरिए टाल न दे, उनका रास्ता रोक न दे, तो फिर मजलूम तो पिस कर रह जाए और ताकतवरों का सारा राज ही चले। इसलिए अल्लाह ने जिहाद किताल की इजाजत दी ताकि जुल्म का रास्ता रोका जा सके। फरमाया वह आसान तकरहू शैया, आदमी को जिंदगी बड़ी प्यारी होती है, बड़ी उम्र का भी होना, मरना तो उसको भी पसंद नहीं होता। इसलिए जाहिर है कि एक ऐसी चीज जिसमें मौत सामने नजर आ रही हो, बजाय तबीयत पर गरा गुजरती है। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते, वो भी होते हैं जो तलाश करते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जान दें। फरमाया आसान तकरहू शैय्यन व खैरुल लकुम, हो सकता है कि एक चीज को तुम नापसंद कर रहे हो, हालांकि उसमें तुम्हारे लिए भला ही भला हो। फरमाया आसान तुहिब्बू शैया, और मुमकिन है कि तुम एक चीज को पसंद कर रहे हो कि जिंदगी मिले, ऐश करें, खाएं पिएं और खेल तफरी में लगे रहें, तो ऐसी जिंदगी पसंद है। फरमाया वह शर्रुल लकुम, हालांकि वो तुम्हारे लिए शर है। जब कोई कौम खेल तमाशों में लग जाती है और जिहाद को भूल जाती है तो फिर गुलामी उसका मुकद्दर हो जाती है। इकबाल ने कहा था ना, तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताऊ सुरबाब आखिर। इसलिए ऐसा ना हो कि आप खेल तमाशों में ही लगे रहे, वही जिंदगी बन जाए। सबसे बड़ी जंग क्रिकेट के मैदान में हो रही है, लेकिन बातिल के मैदान में जंग, आदमी भाग रहा है, वहां जाने से कतरा रहा है। ऐसा ना हो। ठीक है, तफरी जायज, तफरी की कोई ममानियत नहीं, लेकिन उसी में गुम हो जाना और असल चीज को भूल जाना, ये बड़ा खतरनाक रवैया होता है। फरमाया वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते कि इसमें भलाई क्या है और उसमें शर क्या है। इसको अल्लाह तुमसे बेहतर जानता है, लिहाजा उसका फैसला यह है कि तुमने लड़ना है। जो हक का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं अपनी साजिशों से, अपने मंसूबों से, अपनी तदबीरों से, तुमने उनसे लड़ना है। अगर वो तुमसे जंग करते हैं, उज़िना युकातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व अन्ना अल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, कातिलुल्लज़ीना युकातिलूना, दोनों सूरतें हैं। मजलूमियत में भी दिफा करने का हक है और जो कोई जारहियत करे तो उसमें भी दिफा करने का पूरा हक है। पहली जंग भी दिफा में थी, जारहियत में नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पे हमला नहीं किया था, सबको पता है, कुफार हमला करने आए थे। इसलिए दिफा का भी पूरा हक है और जुल्म का रास्ता रोकने का भी पूरा हक है। फरमाया यसअलूनका अनिश्शारिल हराम, तुझसे पूछते हैं शार हराम के बारे में, क़ितालिन फी, कि उसमें लड़ना कैसा है। कुल क़ितालुन फीही कबीर, कह दीजिए उनमें लड़ना बड़ा गुनाह है। 4 महीने रजब, ज़िकात, ज़िलहज, मुहर्रम। और इस पर इमाम जस्सास रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इजमा है उम्मत का, उलमा का, आइम्मा का, कि अब ये हुक्म मनसूख है। लेकिन बाज़ बुजुर्गों का कहना यह है कि अब भी ये हुक्म बाकी है कि इन 4 महीनों में जंग करना जायज नहीं।
अब इन दो अकवाल में तत्वीक कैसे करेंगे कि भाई आप इन महीनों में जंग किसी से ना करें, लेकिन अगर कोई आपसे जंग छेड़ देता है तो फिर दिफा का हक आपको पूरा हासिल है, ये बात बन सकती है। फरमाया वसद्दुन अन सबीलिल्लाह व कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम। लड़ने से भी ज्यादा फितना क्या है? अल्लाह के घर से, वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकना, व कुफ्रुम बिही, और उसका कुफर करना, इनकार करना, वल फितनतु अशद्दु मिनल, वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से रोकना, व इखराज आलिही, और उसके रहने वालों को मस्जिद हराम से निकाल देना, ये कत्ल से भी बढ़कर है, ये लड़ाई से भी बढ़कर जुर्म है। अकबर इंदल्लाह, बड़ा है अल्लाह के यहाँ, वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, और वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, और फितना बड़ा है कत्ल से। अब बड़ा और अशद, एक जगह अशद का लफ्ज आया, तो अशद की मानी शदीद है अपने नुकसानात के एतबार से, और अकबर बड़ा है अपने गुनाह होने के एतबार से। फरमाया वला यज़ालूना युकातिलूनकुम, और वह तुमसे हमेशा लड़ते रहेंगे, हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, उस वक्त तक वो लड़ते रहेंगे जब तक तुम उनका दीन कबूल न करो। यानी कुफार का अहले बातिल की जंग इसलिए है कि तुम बातिल को इख्तियार करो, और तुम्हारी जंग भी तो इसलिए होनी चाहिए कि बातिल को नाकाम किया जाए और हक को गालिब किया जाए। फरमाया इन इस्तताऊ, अगर वो इसकी ताकत पाए, व मन यर्तद मिनकुम अन दीनी, और जो कोई फिर जाएगा तुम में से अपने दीन से, अगर वो गलबा पा ले, तुम्हें वो काफिर बनाने की तरगीब दे, और तुम डर कर या मफादात का असीर होकर कुफर को कबूल कर लो, तो ये फिर जाना क्या होगा? इर्तिदाद, और इर्तिदाद अल्लाह की निगाह में बड़ा कबीह तरीन जुर्म है, और इसकी सजा भी एक रियासत के हवाले से ये है कि मुर्तद को कत्ल कर दिया जाए, उसको रियायत में दी जाए, उसके लिए उसके हुकूक ना मुकर्रर कर लिए जाएं, बल्कि उसको सजाए मौत दी जाए, जो दीन से, दीन इस्लाम से फिरता है उसके लिए। लेकिन अगर कोई पहले से आबाओ अजदाद से फिर गया, उसके आबाओ अजदाद फिर गए और वो बाद में उन्हीं की नकल करते हुए आ रहा है, उसे मुर्तद शुमार नहीं किया जाएगा। काफिर तो शुमार कर सकते हैं, मुर्तद शुमार नहीं कर सकते। मुसलमानों में से जो अगर कोई मिर्जाई हो जाता है तो वो मुर्तद तो समझ होगा, लेकिन अगर मिर्जाई खानदान में कोई उसकी नस्ल मिर्जाई चली आ रही है उनकी वजह से, तो वो जो नस्ल है वो मुर्तद तो शुमार नहीं होगी, अलबत्ता कुफर का उनके ऊपर जरूर लग जाएगा। फरमाया वह काफिरुन फयमुत, फिर वो मर जाए, वह काफिरुन, और वो कुफर की हालत में हो, फउलाइका हबितत अमालुहुम, फिर ये वो लोग हैं जिनके अमाल जाया हो गए, बर्बाद हो गए। इसका मतलब है उसके कोई अच्छे अमल मौजूद थे, इसलिए कि बुरे अमाल को तो जाया करने की जरूरत नहीं, उन पर तो फैसला होना है। तो जो अच्छे अमाल दुनिया में करते हैं, इसका मतलब काफिर भी कोई अच्छे अमाल कर सकता है। अब जिसने गंगा राम बनाया उसने बजाय अच्छा काम किया, इसी तरह किसी ने सराय बना दी लोगों की सहूलत के लिए, अच्छा काम। और कितने वो इदारे हैं कि जब जल्जले या सैलाब आते हैं तो लोगों की मदद करते, तो अच्छे काम है, लेकिन ये अच्छे काम कुफर की वजह से आखिरत में काम नहीं देंगे। फरमाया खबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा व उलाइका अस्हाबुन नार, और यही वो आग वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, उसमें वो हमेशा रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और वो जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू, और जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, उलाइका यरजूना रहमतल्लाह, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अच्छा, ये उम्मीद दिलाकर साथ ही बख्शने की और मेहरबानी की बात जो की है, इसमें भी एक हिकमत है कि चले जिद्दोजहद, अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद करते, अगर कोई कमी बेशी हो जाती है, कोई साहू खता हो जाती है, तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, उम्मीद दिलाई है। क्योंकि इंसान क्या है? खता का पुतला है,
غلطی تو किसी से भी हो सकती है, बल्कि एक हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला को सब खताकारों में से वो खताकार पसंद है जो अत्तवाबून, अपनी गलतियों को जाने भी, माने भी और माफी भी तलब करे। लेकिन वो खताकार जो ढीठ बन जाए, गलती भी करे और अकड़ा भी रहे, तो फिर उसके लिए रहमत नहीं है, उसके लिए फिर जहमत ही है। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबिलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतल्लाहि वल्लाहु गफूरुर रहीम। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, तुझसे पूछ रहे हैं, ये दूसरा सवाल आ गया, तुझसे पूछते हैं शराब और जुए के बारे में। सवाल ये हुआ, सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सवाल रखा, या रसूलुल्लाह अगर हम जुआ खेल लें तो पैसे आ जाएंगे, पैसे आएंगे, असला खरीद लेंगे, दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए हम ज्यादा बेहतर तौर पे मुसल्ला हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि शराब पीकर जरा जिसम वक्ती तौर पर तवानाई महसूस करता है तो अच्छी तरह लड़ लेंगे। तो फरमाया कि कुल फीमा इस्मुन कबीर, कह दीजिए उनमें बड़ा गुनाह है, वह मनाफिउ लिन्नास, कुछ फायदे भी हैं लोगों के लिए, जाहिर है फायदे भी कुछ हैं, खुद कुरान कह रहा है वह इस्मुमा अकबर मिन नफिमा, इन दोनों का गुनाह उनके फायदे से बढ़कर है, ये बात कह दी। अब यहाँ एक बात बड़ी अहम ये है कि साफ ये नहीं कहा कि हराम, कहा उसमें गुनाह भी है, कुछ फायदे भी हैं, साफ ममानियत नहीं आई। कहते हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, या अल्लाह, कोई लोग शराब का आम चलन हो गया, चल रहा था, अरब तो शराब में डूबे हुए थे। अब जो लोग इस्लाम ला रहे थे वो भी, उनमें भी कई शराब पीने वाले लोग थे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, या अल्लाह, कोई हुक्म ऐसा काफी हुक्म अता फरमा जिससे बिल्कुल इससे जान छूट जाए। यहाँ है तदरीज, अहकाम में तदरीज गवारा है, अकीदे में तदरीज गवारा नहीं होती कि आदमी आधा मुआहिद हो जाए, आधा मुशरिक रहे, ये बात गवारा नहीं है। अकीदे में या मोमिन या काफिर, अहकाम में तदरीज है। यहां सिर्फ इतनी बात कही, फिर जाके सूरह मायदा गालिबन उसमें वाज़ेह लफ्ज़ में कहा कि इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबू। बस अब बात आ जाओ। एक सहाबी गए हुए थे, शराब का कारोबार करते थे, बाकायदा शराब की दुकान थी, और मैंने अपनी आंखों से देखा है अपने तालिब इल्मी दौर में, एक साहब बड़े बुजुर्ग उम्र के, बारिश, नमाजें खूब पढ़ते, वहां भी जो उनकी दुकान थी उसमें मुसल्ला डाला होता था और शराब का काम करते थे। तो वो साहबी गए, शराब खरीद कर लाए। अभी मदीना में दाखिल हो रहे हैं कि उनके कानों में आवाज पहुंची कि शराब हराम हो गई। कितना माल लाए होंगे, ज़ाहिर उस वक्त के हिसाब से बड़ा कीमती सरमाया था। उसी वक्त उन्होंने सारे मटके उड़ेल दिए। ये जज्बा था कबूलियत का, और इसी जज्बे कबूलियत ने उनको दुनिया का इमाम बनाया। सिर्फ सुन लेने से बात नहीं बनती जब तक कबूलियत का जज्बा न बने। तो फरमाया वयसलूनका माज़ा युनफिकून, वही सवाल दोबारा आ गया कि तुझसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें, कुल अफ़ू, अब बताया कि क्या खर्च करना है। यहाँ अफ़ू कहने का मतलब ये है कि जरूरत से जायद जो है उसमें से खर्च कर लो। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद भी है कि आदमी जब इन्फाक करे तो ये देख ले कि अपने बीवी बच्चों के हुकूक तलफ न होने पाए। ऐसा ना हो कि आदमी कह ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, और बीवी बच्चे भूखे प्यासे रहे, तो ये बात मुनासिब नहीं है। इसलिए अल अफ़्व का लफ्ज इस्तेमाल किया जो जरूरत से क्या है, जायद है। फरमाया कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयात को बयान करता है, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम सोच विचार करो, गौर व फिक्र करो। फिर दुनिया वल आखिरह, दुनिया और आखिरत में। वयसअलूनका अनिल यतामा, और तुझसे पूछते हैं यतामा के बारे में, यतीमों के साथ क्या करना चाहिए। कुल इस्लाहुल लहुम खैर, कह दीजिए उनकी इस्लाह बेहतर है। ये एक असूली बात कह दी।
वैसे तफसीली कदरे तफसीली आकाम सूरह निसा में आएंगे। इस्लाह किस तरह, यानी उनकी खैरखाई करो, उनके जो कुछ सरमाया है ना, जो माल पैसा है उसको जाया नहीं होना चाहिए। अगर तुम उनके माल पैसे को किसी ऐसे काम में लगाते हो कि उनका वो माल ऐसे जाम ना पड़ा रहे, उससे कुछ इजाफा हो जाए, तो ये भी तुम्हारी ख्वाहिश बेहतरी की है अगर। लेकिन अगर कोई और ख्वाहिश है कि खा पी लो, तो फिर वो खतरनाक है, वो तो शदीद तरीन नुकसान है। बल्कि कहा कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं, अल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा वज़ूरा, ज्यादती के साथ और झूठ के साथ, मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला नार, वो अपने पेटों में आग भरते हैं। वो रोटी नहीं खाते, पानी नहीं पीते, आग भरते हैं, यानी उनका अंजाम बड़ा बुरा है। फरमाया व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम, और अगर तुम उनके साथ रला मिला लो, मिक्स कर लो, तो तुम्हारे भाई हैं। यानी ये भी गुंजाइश रखी कि चलो कारोबार मुश्तरका हो जाए, तुम्हारा कारोबार चल रहा है, उनका भी पैसा बीच में शामिल कर देते हो कि चलो इनके भी 4 पैसे जमा होते रहेंगे, तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। फरमाया वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिदा मिनल मुस्लिह, और अल्लाह जानता है कि फसादी कौन है और खैरखा कौन है। जहां ये बात इशारा कर दिया कि जिसने हिसाब लेना उसको पता है तुम किस नीयत के साथ ये सब कुछ कर रहे हो। वलौ शाअल्लाहु लअनतकुम, और अगर अल्लाह चाहता तो तुमको मुशक्कत में डाल देता। वो मुशक्कत क्या होती कि अल्लाह हुक्म देता कुरान में कि यतीम का माल महफूज कर दो, अपने माल से उसकी परवरिश करो, अपने माल से उसकी तालीम हो, उसकी सेहत हो, उसका लिबास हो, उसका खाना हो, और उसकी हर जरूरत को पूरा किया जाए, तो फिर तुम्हें करना पड़ता। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा अगर उनके माल को नहीं भी मिलाते तो उन्हीं को खिलाना चाहते हो तो उनके माल से खिलाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि एक रोटी उसके हिस्से की उसी के माल से और 2 रोटियां अपनी उसके माल से, ये न करो। मतलब है उनका माल ताकि उनके सन्ने शऊर को पहुंचने तक माल पूरा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फरमाया इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, और मत निकाह करो मुशरिका औरतों से जब तक कि वो ईमान न लाए। हत्ता युमिन, यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। वला अमातुम मोमिना, और लौंडी मोमिना खैरुम बेहतर है में मुशरिका औरत से। वलो आजबतकुम, अगरचे वो मुशरिका औरत तुम्हें पसंद आई हो, माल में जमाल में दोनों सूरतें होती हैं। फरमाया वला तुनकिहुल मुशरिकीन, और ना निकाह करें मुशरिकों से, हत्ता युमिनु, यानी मुशरिक मर्दों से, यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। वला अब्दुम मोमिनुन खैर, और गुलाम मोमिन बेहतर है मिन मुशरिक से। वलो आजबकुम, अगरचे वो मुशरिक तुम्हें बहुत पसंद हो। ऐसा नहीं करना। इसका मतलब ये हुआ कि रिश्ते पीछे हैं, दीन आगे है। रिश्ते पीछे हैं और दीन आगे है। रिश्तों पर दीन मुकद्दम है। अब दिल तो चाहता है फलां औरत से निकाह किया जाए, लेकिन वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है। वैसे अहले किताब की औरतों से तो निकाह की इजाजत दी गई, लेकिन वहां भी कदगन मौजूद है। तो आदमी उसके हुस्न जमाल से या उसके माल से मुतासर हो, उससे दिल लगा बैठे और चाहे कि उसके साथ शादी हो जाए, तो दीन क्या कहता है, उस गैर मुस्लिम से, हिंदू सिख से निकाह नहीं कर सकते, मुशरिका से निकाह नहीं कर सकते, अगरचे तुम्हें वो पसंद है। इसी तरह मोमिना औरत को कहा कि एक मर्द से निकाह करना चाहती हो, तुम्हें ज्यादा पसंद है उसका माल, उसका जमाल, जो भी चीज मुतासर कर रही है, लेकिन वो मुशरिक है, तो उससे निकाह करने की इजाजत नहीं है, निकाह नहीं होगा। और इसी तरह हमने ये देखा बदकिस्मती से जहालत की मार होती है। कई बेचारे सीधे साधे मुसलमान, उनकी बेटियां मिर्जइयों के यहाँ, और ये कोई पता ही नहीं कि हम ये निकाह है भी नहीं, और इसके बावजूद वो सिलसिला चलता रहा। तो फरमाया कि
वलौ आजबकुम उलाइका यदून इलन नार, क्यों नहीं करना इनसे? इसलिए कि ये आग के दाई हैं, आग की तरफ ले जाने वाले हैं, तो ये तुम्हारा अखलाक भी तबाह करेंगे, तुम्हारा अकीदा भी खराब करेंगे। फरमाया वल्लाहु यदू इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्नि, और अल्लाह बुलाता है बख्शिश की तरफ अपने इज़्न से और जन्नत की तरफ, अपनी जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है अल्लाह, और ये बुलाते हैं जहन्नम की तरफ। यवा युबय्यिनु आयाती, और बयान करता है अपनी आयत को, लिन्नास, लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद कोई वो नसीहत पकड़े। व यसअलूनका अनिल महीज़, एक लफ्ज़ है जी वला तनकिहुल मुशरिकात, यहाँ पे जी जी आया हुआ है वला तुनकिहुल मुशरिकीन, ये मारूफ मजहूल, इसमें क्या मसला है? इसमें चूंकि ना निकाह करें औरतों को कहा जा रहा है, तो इसलिए उनको फाइल नहीं बनाया, फाइल की हैसियत जिक्र नहीं किया, मफूल की हैसियत जिक्र किया है। मैं ये भी एक हिकमत है, चूंकि बाज़ का ये होता है कि औरतों की यानी ज्यादा मसला होता है मर्दों के लिए ना, तो उनके लिए औरतों के हवाले से तो फाइल का जिक्र किया, लेकिन औरतों की तरफ से मर्दों के लिए चूंकि कम तर पे, इसलिए उनका मफूल के तौर पे जिक्र किया है। कोई खुद निकाह कर सकती है, ये क्या इसमें ये तजर्बा नहीं हो रहा कि वो जो वली हैं हाँ, उनके निकाह न करें, वला तुनकिहुल मुशरिकीन, इससे क्या किया जा सकता है, लेकिन वाज़ेह तौर पे इसको इसकी दलील नहीं बनाया जा सकता। फरमाया कि वल्लाहु यदू इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निही व युबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून व यसअलूनका अनिल महीज़, और तुझसे पूछते हैं इसके बारे में, कुल हुवा अज़ा, कह दीजिए वो गंदगी है, फातज़िलुन निसा, बस अलग रहो औरतों से, फिल महीज़, हालत हैज़ में, वला तक़रबूहुन्ना, और मत करीब जाओ उनके, हत्ता यतून, यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं, फैज़ा तत्तहरन फ़ातून मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, फिर जब वो पाक हो जाए तो आओ उनके पास जहाँ से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और पसंद करता है पाकीज़ा लोगों को। निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां, फातू हर्सकुम, पस आओ अपनी खेतियों को, अन्ना शेतुम, जिस तरह चाहो तुम, वक़द्दिमू, जिस तरह चाहो, तर्जमे पर तवज्जो रखें, जिस तरह चाहो, लेकिन जिस मकाम से नहीं, जिस तरह से। फरमाया वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और आगे भेजो अपने नफ्सों के लिए, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, वालमू, और जान लो, अन्नकुम मुलाकू, कि बेशक तुम उससे मिलने वाले हो, बशीरिल मोमिनीन, और खुशखबरी दे दीजिए ईमान वालों को। चूंकि ये जो खानदानी निज़ाम है, इसकी इस्लाम के अंदर बड़ी अहमियत है, और यही मुआशरे को तश्कील देता है, तो निकाह की हौसला अफजाई भी की है, और निकाह के हुदूद व क़ुयूद को भी बयान किया है, निकाह के भी और निकाह के बाद के अहकामात को भी बयान कर दिया है। और कहते हैं ना, ला हया फिल मसअला, कि मसला पूछने में यानी कोई हया शर्म वाली बात नहीं होती। अगर कोई ऐसी बात हो तो कुरान मजीद ने इन चीज़ों को खुला जिक्र कर दिया है कि ये सूरत हाल है, और इससे एक बड़ी वाज़ेह बात ये भी बता दी है कि इस सारे सिस्टम के अंदर सरबराह कौन है, ये हकीकत भी यहाँ से इशारतन मिल रही। वैसे आगे सूरह निसा में तो खुले लफ्ज़ों में है, अर्रिजालु कव्वामून अला निसा। कोई भी दुनिया का निज़ाम किसी सरबराह के बगैर नहीं चलता। अगर एक मुल्क किसी सरबराह के बगैर नहीं चल सकता, और अगर एक मुल्क के अंदर कई सरबराह हो जाएं तो निज़ाम चलता नजर नहीं आता। घर के अंदर भी अगर सारे बराबर हो जाएं तो निज़ाम कैसे चलेगा? निज़ाम तो नहीं चल सकता, किसी एक को तो आगे होना है। और ये तो खिदमत है, अल्लाह ने मर्दों के जिम्मा खिदमत की है, औरतों को उस मेहनत से महफूज रखा है, नानो नफका की मेहनत से, कि वो बाहर जाकर मुशक्कत वाले काम करें, भाग दौड़ करें। और आप अगर कभी देखें मंजर, वो भी एक इबरतनाक मंजर होता है, जब ख्वातीन जो मुलाजमत बेचारी करती हैं, जिनका कोई जरिया नहीं होता, जिस हाल में वो सफ़र करती हैं, जिस हाल में वो इंतज़ार कर रही होती है, जिस हाल में, तो अजीब गरीब सूरत हाल होती है। अल्लाह ने औरत को इस तकलीफ से महफूज रखा, उसको घर की चार दीवारी देकर
वहां अमन और सुकून के साथ बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी दे दी और मर्द के जिम्मा लगा दिया कि जाओ खेतों में भागो तो तुम्हारी मर्जी है, मशीनों पे जाके खड़े हो जाओ तुम्हारी मर्जी है, दफ्तरों में जाके 8-8 घंटे ड्यूटी दो, बाज तो इससे भी ज्यादा, या ट्रेनों पर बैठकर सारी सारी रात जागते हुए रोजी कमाने की खातिर लगे रहो। मर्दों के जिम्मा है नानो नफका, औरत के जिम्मा नानो नफका नहीं है। मार मुकर्रर मर्द की तरफ से होता है, औरत की तरफ से मार मुकर्रर नहीं होता कि औरत के से निकाह करती हुई शर्त रखी जाए कि औरत मर्द को क्या मार देगी। कभी ऐसा हुआ? क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने खुद अपने ज़ाब्ते के तहत मर्द को ये जिम्मेदारी दे दी है सरबराही की, और वही सरबराह है। जिस घर में वो सरबराह है वो घर ठीक चलता है, जिसमें कई सरबराह हैं वो घर ठीक नहीं चलता, मुआशरा खराब होता है। और जब मुआशरे के अंदर खराब भी पैदा हो जाए तो फिर मसाइल बढ़ते हैं और झगड़े बढ़ते हैं, और फिर जब झगड़े बढ़ जाए तो फिर थाने कचहरियां आबाद हो जाते हैं, और जब थाने कचहरियों से भी मामला आगे बढ़ जाए तो पूरा निजाम हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए खानदानी निजाम को बड़े खूबसूरत अंदाज में इस्लाम ने कवर दिया है, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उसको मजबूत बनाया है उन बुनियादों पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ये फरमाया कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने खामद को सजदा करे, वहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया तुम में से बेहतर आदमी वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। बाहर आदमी शेरनियां बांटे और घर जाके गालियां दे तो ये भी कोई जाब्ता नहीं है, ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। अगर अपनी बीवी बच्चों से आदमी का हुस्न सलूक नहीं है तो बाहर लोगों के लिए जितना अच्छा बना रहे उसकी कोई कीमत नहीं है, बेकीमत चीज है। तो फरमाया कि ये वो मसाइल हैं जो खानदानी निज़ाम के मुतल्लिक़ है। इसमें एक नुक्ता और भी है, और वो ये है कि निकाह का मकसद नस्ल इंसानी की तौसी है। अगर अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा करे तो खलीफा तो उनको बना रहे थे, आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा मुकर के, हजरत हव्वा को तो खलीफा नहीं बनाया। लेकिन हजरत हव्वा को क्यों पैदा किया? ताकि खानदानी निज़ाम वजूद में आए, उनसियत पैदा हो। तन्हाई अल्लाह को जचती है, किसी और को नहीं जचती, और अल्लाह ने इसीलिए कहा कि ये निकाह तुम्हारे लिए सुकून का बायस है और मोहब्बत का जरिया है। तो इससे आदमी की जिंदगी में हुस्न आता है, खूबसूरती आती है, सुकून आता है। तो निकाह के अंदर बुनियादी ख्वाहिश जो है वो औलाद की होती है। अब ये अल्लाह ताला के अपने फैसले, कहीं नहीं मिलती कहीं मिल जाती है। लेकिन आप देखिए कि नूह अलैहिस्सलाम का जब तूफान आया था कौम नूह पर, और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार होकर आए थे तो 40 आदमी थे। 40 आदमियों को अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि पूरी रुई जमीन पे आल नूह फैल गई, पूरी रुई जमीन पे। इसलिए ये निकाह की असल गर्ज व गायत है, अयाशी नहीं। असल गर्ज ये है पाकदामनी और औलाद। फरमाया वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाकू वबश्शिरिल मुमिनीन वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, और मत बनाओ ढाल अपनी कसमों को। ये कसमें, बात बात पे कसम खाना, ये भी ना हो। झूठी कसम खाना तो बहुत बदतर चीज है। फरमाया जो झूठी कसम है वो तो शिर्क के बराबर है, शहादत ज़ूर बाल इशराक बिल्लाह। तो यमीन जो झूठी कसम है वो भी एक किस्म की शहादत के करीब चली जाती है, तो वो भी कबीरा गुनाहों में शुमार की गई है। झूठ बोलना भी कबीरा गुनाहों में शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह मोमिन बद किरदार हो सकता है? फरमाया हो सकता है, मतलब कुछ ख्वाहिशी कर ले, हो सकता है। कोई और चीज जिक्र की, फरमाया वो भी हो सकता है। पूछा झूठा हो सकता है? फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात है। फरमाया वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, और मत ढाल बनाओ अपनी कसमों को। अन तबर्रु व तत्तकू, यहाँ ला माज़ूफ है, अल्लाह तबर्रु वला तत्तकू, कि तुम नेकी नहीं करोगे। मतलब आदमी कसम खा लेता है मैं आइंदा बाप की खिदमत नहीं करूंगा, मैं आइंदा माँ की खिदमत नहीं करूंगा, मैं इन्हें कोई खर्चा नहीं दूंगा, मैं इनके साथ कोई बोलूंगा भी नहीं, अच्छा सलूक भी नहीं करूंगा, ये कसम खा ली। तो इस कसम को तोड़ना वाजिब हो जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहा है। तो फिर कसम तोड़ ली जाए कफारे के साथ।
अगर वो कसम खा लेते हैं। तो फरमाया वतुस्लिहु बैनन्नास, और इस बात पे कसम खा लो हम किसी की सुलह में नहीं आएंगे, बस जी लोग बड़े गलत हो गए, किसी की सुलह में नहीं आए। अगर आपका कोई दाइया चलता है सुलह दो फरीकैन के दरमियान मुफाहमत का, तो उसे जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी एक अच्छी तरगीब दी गई है कि लोगों के दरमियान सुलह कराना बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा खैर है। इसलिए फरमाया कि ऐसी कसम भी मत खाओ कि हम आइंदा किसी के मामले में नहीं आएंगे। भाई क्यों नहीं आओगे, ये जिंदगी तो आपस के मामलात में आने जाने का नाम है। फरमाया वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने जानने वाला है। ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी ऐमानिकुम, अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ेगा बिल्लग़्वी फी ऐमानिकुम, लग़्व कसमों पर। मैंने कल जिक्र किया, परसों जिक्र किया था, कल हुई थी बात कि लग़्व कसम क्या है। लग़्व कसम वही है जो आदमी आदतन खाता है, तकिया कलाम के तौर पे कसम खा लेता है, वल्लाह बिल्लाह तल्ला, यानी कोई बाकायदा कसम की नीयत से कसम नहीं खा रहा, तकिया कलाम है। तो इस पर कोई गिरफ्त नहीं है, अगरचे ये अच्छा नहीं है लेकिन इस पर गिरफ्त भी नहीं है। वलाकि युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, वलेकिन वो तुम्हें पकड़ेगा उस पर जो तुम्हारे दिल कमाते हैं, दिल करते हैं। अब जो इरादतन कसम खाई गई कि मैं कसम खा रहा हूं इस बात पर, उस पर मुआवजा होगा। अगर सच्ची होगी तो अजर होगा, बुरी होगी तो गलत होगी, झूठी होगी तो फिर सजा होगी। इस पर मैंने जिक्र किया था कि कसम की 3 किस्में मौजूद हैं। लग़्व जो तकिया कलाम, और एक वो कसम कि आदमी ने माजी के बारे में खाई है और ये समझ कर खाई है कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है, उसको पूरा यकीन है कि वो जो बात कह रहा है बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, गलत बात नहीं कर रहा, तो ये कसम इस पर मुआवजा नहीं होगा क्योंकि वो भूल रहा है और भूलने पे माफी मिल जाती है। एक कसम वो है जो आदमी मुनक़द करता है कि मैं ये काम करूंगा या मैं ये कर देता हूं। अब कसम खा ली है, काम अगर जायज है तो वो करना होगा, नहीं करेगा तो कफारा देना पड़ेगा, और अगर नाजायज काम की कसम खाई है तो उसका मैंने जिक्र कर दिया, तो वो तोड़नी भी जरूरी है, तोड़ेगा भी और भुगतेगा भी। फरमाया वल्लाहु गफूरुन हलीम, और अल्लाह बख्शने वाला तहम्मुल वाला है। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाति अशहुर, वो लोग जो इला करते हैं अपनी औरतों से 4 महीने इंतजार करना है, 4 महीने इंतजार करना, तरब्बुस इंतजार करना। ये इला क्या है, यानी कसम खा ली कि मैं अपनी बीवी से कोई ताल्लुक नहीं रखूं, 4 महीने का बाइकाट। तो अगर ये इसी तरह चलता रहा और इसमें वो 4 महीने गुजर गए तो तलाक वाक़या हो जाएगी। इसको इला कहते हैं इस्तिलाह शरीयत। एक होता है वैसे नाराजगी हो जाए, बोल चाल बंद, तो ये एक अलग सूरत है, उसमें ये कानून नाफिज नहीं होगा। एक है कि वो ये कसम खा ले कि मैं इसके करीब नहीं जाऊंगा, मैं इससे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा, तो ये कसम इस मामले को यहां तक ले जाएगी कि तलाक वाक़या हो जाएगी। फैनफाऊ फैनल्लाह गफूर रहीम, फिर अगर वो फिर आए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, यानी अगर रुजू कर ले तो फिर बचत हो सकती है। वैन आज़म तलाक, और अगर वो इरादा कर ले तलाक का, फैनल्लाह समीउन अलीम, पस बेशक अल्लाह सुनने जानने वाला है। वल मुतल्लकात, और मुतल्लका औरतें यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत कुरू, अपने आप को रोक कर रखें 3 हैज। एक माना किया है तौर का भी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वो माना है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक ये है। ये लफ्ज़ ऐसा है जो दोनों मानों को शामिल है। अरबी ज़ुबान में बाद अल्फाज बड़े दिलचस्प है कि एक ही लफ्ज़ कई मानों में बोला जाता है और मुतज़ाद मानों में बोला जाता है। तो कुरू का लफ्ज़ तौर पर भी बोला जाता है और हैज पर भी बोला जाता है। तो हैज को इमाम साहब ने इसलिए कहा कि हैज मुकम्मल होगा, तौर में चूंकि तलाक देनी चाहिए, हैज में तलाक नहीं देनी चाहिए। तो आदमी जब तौर में तलाक देगा तो जिस तौर के अंदर तलाक देगा तो वो तौर अगर गिनेंगे
तो 3 पूरे नहीं होंगे, और अगर नहीं गिनेंगे तो 3 से जायद हो जाएंगे, लेकिन है 3 के 3 मुकम्मल होंगे। लिहाजा जब तलाक तौर में देने का हुक्म है तो फिर है 3 मुकम्मल होंगे, तो ये उसका बन जाएगा, इद्दत बन जाएगी। फरमाया वला यहिल्लु लहुन्ना यक्तुमना मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन, और नहीं हलाल उन औरतों के लिए कि वो छुपाएं उस चीज को जो अल्लाह ने उनके रेमों में पैदा की है। इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर वो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखती हैं, ताकि बच्चे का नसब जो है वो गलत ना हो जाए, इसलिए उसे छुपाने की इजाजत नहीं है। वह बऊलतुहुन्ना हक्कु बिरद्दिन, और उनके खामद ज्यादा हकदार है उनको लौटा लेने के। तो ये रुजू की शक्ल में, रुजू की सूरत में खामद ज्यादा हकदार है कि वो अपनी बीवी पर रुजू कर ले, क्योंकि 2 तलाकों तक रुजू का इख्तियार बाकी रहता है। तो रुजू का हक खामद का फाइक है, किसी और को मौका नहीं मिलना चाहिए। फी ज़ालिका नरादु इस्लाहा, इसमें अगर वो इस्लाह चाहें, अगर वो इस्लाह चाहते हैं तो फिर रुजू उनका हक है, वो कर सकते हैं। अब इसमें भी 2 सूरतें बनती हैं। अगर 2 तलाक़ें देने के बाद इद्दत की मुद्दत गुजर गई तो तीसरी तलाक खुद ब खुद वाक़या हो जाएगी, और अगर इद्दत के दौरान ही उसने रुजू कर लिया तो ठीक हो गया, लेकिन तीसरी तलाक उसने दी नहीं है, ये वाक़या होने जा रही है, तो इसमें तजदीद निकाह हो सकती है, इसको तलाक बायन कहते हैं। और तलाक मुग़ल्लज़ा हुआ है जिससे बिल्कुल ही मसला खत्म हो जाता है। फरमाया वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, और उनके लिए भी, बीवियों के लिए भी मिसल उसके है जैसा उन मर्दों पर है, यानी हुकूक दोनों के हैं, मर्द की बीवी पर और बीवी के मर्द पर, और जिम्मेदारियां भी दोनों की हैं। अब जिम्मेदारियों की बात तो कोई नहीं करेगा, हुकूक की बात तो सब कर लेते हैं। हुकूक का मुतालबा शुरू हो जाता है, हुकूक पर तारीखें चल पड़ती हैं, लेकिन जिम्मेदारी की बात कोई नहीं करेगा। हालांकि तवाज़ुन इसी से आता है, अगर मर्द का हक औरत पर है तो औरत का भी हक मर्द पर है। अगर मर्द औरत का हक पूरा नहीं करेगा तो औरत भी उसका हक अदा करने में कोताही कर सकती है। अगर औरत मर्द का हक पूरा नहीं करेगी तो मर्द भी उसके हक में कोताही कर सकता है। तो ताली कहते हैं ना, दोनों हाथों से बजती है। फरमाया वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, बड़े वाज़ेह लफ्ज़ है, हमें किसी मरूबियत का शिकार नहीं होना चाहिए। कुरान कह रहा है, अल्लाह का कलाम कह रहा है कि मर्दों का एक दर्जा है औरतों पर। अल्लाह ने एक, जाहिर है दुनिया में कोई भी निज़ाम ऐसा नहीं जिसमें दर्जा बंदी ना हो। दर्जा बंदी के बगैर कोई निज़ाम दुनिया में मौजूद ही नहीं है। जो लोग इन चीज़ों पर एतराज़ करते हैं, इस्लाम पर मुतरिज़ होते हैं, वो इस हकीकत को भूल जाते हैं कि उनके अपने निज़ामों में दर्जा बंदी मौजूद है, तो फिर इस्लाम पर इल्ज़ाम क्यों देते हैं? अल्लाह ने जो दर्जा बंदी की है वो तो बड़ी हिकमत के साथ की है। तुम्हारी दर्जा बंदी तो हो सकता है किसी मफाद के तहत हो, अल्लाह को तो तुमसे कोई मफाद नहीं। अल्लाह ने जो दर्जा बंदी की है उसने अपनी हिकमत के साथ की है, इसलिए कि मर्द के गवाह जंग के लिए भी मौजू हैं और मैदान कारोबार और इन चीजों के लिए भी मौजू हैं। और सिन्फ नाज़िक करार दी गई, इसीलिए उसका मकाम और मैदान अलग रखा गया ताकि उसको ज्यादा सोबत और तकलीफ बर्दाश्त ना करनी पड़े। आप देखते हैं जंग तो सहाबा किराम ने की, मर्दों ने की, औरतों को हुक्म नहीं हुआ। हाँ, कोई अपने शौक से चलेगी तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा उनके ऊपर ये हुक्म लागू नहीं हुआ, शरीयत ने लागू नहीं किया। औरतों को रुख्सत मिली कि तुम घर में बैठो, बस दुआ करती रहो, और जो अगर कोई मदद कोई काम हो सकता है मुजाहिदों के लिए तो वो करती रहो, लेकिन मैदान जंग में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। फरमाया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला। तलाक मर्रतान, तलाक 2 ही मरतबा है। फ़इम्साकुम बिमारूफ, फिर रोक लेना है कायदे के मुताबिक, और तसरीहुन, या छोड़ देना है बेइहसान, भले तरीके से छोड़ना भी है तो भले तरीके से छोड़ना है, अच्छे अंदाज में। चले निभा नहीं हो सका, हो जाता है बाज़ औक़ात, तो फिर रुख्सत करना है तो उसे अच्छे अंदाज में रुख्सत करें। और यही वजह है ना कि आज हमारे मुआशरे में बर्दाश्त की कमी हो गई, तो वो गुस्सा निकालते हैं, एक तो जिंदगी खराब कर रहे हैं, एक फिर उसको ऐसी बदअखलाकी के साथ कर रहे हैं
क्या लमान वाला हफीज, वो समझते हैं ये बड़ी बहादुरी है, हालांकि ये बहादुरी नहीं होती, ये बड़ी पस्ती है। फरमाया और तसरीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन ताखुदू मिम्मा आतैतुमून, और तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम उनसे ले सको जो तुमने उनको दिया है। अब ये नहीं कि बीवी को घर से निकाल भी रहा है और जो कुछ दिया सारा छीन के रख ले, ये भी मेरे घर की चीज है, ये भी मेरे घर की चीज है, कपड़े भी मेरे घर के हैं, अपने मेके के कपड़े पहनो और ये छोड़ के जाओ और ये करो, ये इंतहा दर्जे की बदअखलाकी है। फरमाया जो मार मुकर्रर किया है उसमें से भी वो बाज़ औक़ात ये होता है कि मार अदा नहीं किया जाता, बीवी भी कह देती चलो कोई बात नहीं, तो आदमी उससे नाजायज फायदा उठाता है, फिर वो मार नहीं देता, और फिर ये अनबन हो गई तो बीवी को फारिग कर दिया, अब मार कैसा मार, तो ये नहीं है। वला यहिल्लु लकुम अन ताखुदू मिम्मा आतैतुमून शैया इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह, मगर ये कि वो दोनों डरें कि वो अगर अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे, तो फ़इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह, फिर अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम हुदूद की पासदारी नहीं कर सकोगे तो फिर तफरीक बेहतर है, फिर तफरीक क्या है, बेहतर है। फला जुनाह अलैहिमा फी मफ्तदत भी, फिर कोई गुनाह नहीं उन दोनों पर, फी मफ्तदत भी, जो भी वो आपस में कोई मुआवजा तय कर ले। अब खुला के अंदर यही होता है कि औरत मुतालबा करती है तलाक का, मर्द नहीं करता, औरत करती है, तो औरत को ये हक, मर्द को ये हक हासिल है कि वो औरत से मुआवजा तलब करे कि तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो तो फिर तुम किस बदले में तलाक लेना चाहती हो, ये उसका हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साहबिया हाजिर हुई, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं अपने खामद से तलाक लेना चाहती हूँ, और मैं वो भी देना चाहता है, कहा नहीं, तो तुम यानी खुला लेना चाहती हो, उसने कहा जी। फरमाया उसने जो तुम्हें मार में बाग दिया था तुम उससे दस्तबरदार होती हो, उसने कहा जी मैं होती हूँ, दस्तबरदार हो गई और खुला ले लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साहबी को हुक्म दिया इसको तलाक दे दो। तो खुला की भी असल तस्वीर यही है कि खामद ही तलाक देगा, हाकिम वक्त हुक्म देगा कि तलाक दे दो, अब हाकिम खुद ही बन बैठता है, क्या कहें उसको, क्या बनता है। तलाक, बीवी की तलाक का इख्तियार सिर्फ शौहर के पास है, किसी मुल्क के सरबराह के पास भी नहीं है। लेकिन अजीब सूरत हाल होती है, ये नए नए कानून, नए नए ज़ाब्ते, अजीब व गरीब मामला, आइली कवानीन के नाम पे। फरमाया कहाँ पहुंचे जी, तिल का हुदूदुल्लाह युबय्यिनुहा, अल्लाह की हद है। अच्छा अच्छा ऊपर ठीक। फला तातदुहा, पस मत तजावुज करो आज से, वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, जो कोई तजावुज करेगा अल्लाह की हदों से, फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वही लोग जालिम हैं। फ़इन तल्लक़ा, फिर अगर तलाक दे दे वो उसको, फला तहिल्लु लहु मिन बाद, फिर नहीं हलाल उसके लिए इसके बाद, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि वो किसी और मर्द से निकाह करे, किसी और की बीवी बनने के बाद फिर वहां अनबन हो जाए या फरागत हो जाए, तो फिर पहला खामन जो है, जो पहले जिसके निकाह में थी, वो दोबारा उससे निकाह करना चाहे तो कर सकता है। लोगों ने हलाला निकाल लिया, हालांकि हलाला बिल्कुल और मुख्तलिफ चीज है और उसके बारे में हदीस के अल्फाज बड़े सख्त है, इसलिए उससे इज्तिनाब जरूरी है। फरमाया फ़इन तल्लक़ा फला जुनाह अलैहिमा, फिर इन तल्लका, फिर वो दूसरा खामन भी उसको तलाक दे दे तो फिर कोई हर्ज नहीं उन दोनों पर कि वो दोनों, पहले खामद और इस औरत ने, कि वो आपस में रुजू कर ले, यानी निकाह कर ले। इन जन्ना, अगर उनका ख्याल ये है युकीमा हुदूदल्लाह, कि वो अल्लाह की हदों को कायम रखेंगे, वतिलका हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह की हदें युबय्यिनुहा लिकौमिन यअलमून, बयान करता है उस कौम के लिए जो जाने। वैदा तल्लक़्तुमुन्निसा, जब तुम तलाक दो औरतों को, फबलगना अजलहुन्ना, फिर वो पहुंच जाए अपनी मुद्दत को, इद्दत को, फअमसिकूहुन्ना बिमारूफ, फिर उनको रोक रखो मारूफ कायदे के मुताबिक, और सरहुन्ना बिमारूफ, या उनको आजाद कर दो कायदे के मुताबिक। यानी दो तरह के दी हैं, उसके बाद रोक सकता है, रुजू कर सकता है, यानी इद्दत के दौरान,
عدت کے بعد پھر بات جو میں نے پہلے ذکر کر دی وہ ہوگی پھر ولا تمسکون ذرارا لتعتدوا اور مت روکو ان کو تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم زیادتی کر سکو. کیا مطلب کہ تم ایک طلاق دے دی لٹکا دیا پھر اب وہ بیچاری طلاق بھی لے لی ایک اور پھرتی ہے ایسے ویسے تو ایسا نہیں کرنا. اسی لیے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تم انہیں معلق نہ چھوڑو بلکہ پھر اپنے تدریج کے مطابق فیصلے کرو. لا تمسکون ذرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ سے زیادتی کر رہا ہے. تو اپنے آپ سے زیادتی تو پھر آخرت میں پتہ لگے گی. دنیا میں بھی بعض اوقات بھگتنا پڑ جاتا ہے لیکن آخرت کی تو پکی ہے. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. واذکروا نعمت اللہ اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو علیکم جب جو تم پر ہوئی. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ اور جو اتاری ہے تم پر کتاب و حکمت. یعظکم بھی تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا اور جانو ان اللہ بكل شيء علیم بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پھر مت روکو ان کو أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ وہ نکاح کریں دوسرے خاندوں سے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب وہ آپس میں رضامند و قاعدے کے مطابق. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یہ اسی کی نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا. ذالکم ازکا لکم واطہر یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے اور ستھرا صاف ستھرا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین حکم رضاعت بیان ہو رہا ہے کہ اگر بیوی نکاح میں ہے تو اس پر لازم ہے کہ بچے کو دودھ پلائے الا یہ کہ کوئی مرض ایسا ہے جس میں طبی نقطہ نظر سے اس کو رکھا جا سکے ورنہ اس کا حق لازم ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے وہ انکار نہ کرے. اگر نکاح سے نکل گئی ہے تو بھی اس کا حق فائق ہے لیکن معاوضے کے ساتھ. یہاں وہ دودھ پلائے گی معاوضے کے بغیر اور نکاح سے نکل جانے کے بعد بچے کو دودھ پلائے گی معاوضے کے ساتھ. فرمایا اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب نکاح سے نکل گئی اب خاوند نہیں چاہتا کہ میں ایسا عورت سے اپنے بچے کو دودھ پلواؤں تو یہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کی بھی کوئی بنیاد کوئی وجہ ہونی چاہیے معقول وجہ ہونی. لیکن اگر کوئی معقول وجہ نہ ہو پھر تو اس ماں کا حق فائق ہوگا. البتہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ معاوضے کا اور رضاعت کا یہ پھر باہمی مشورے کے ساتھ طے ہوگا. ظاہر ہے طے ہوگا تو معاوضہ جو بھی طے ہوگا تبھی بات آگے بڑھے گی. فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن اور مولود لہو جس کے لیے وہ بچہ جنا گیا. دیکھو یہاں بھی اس کو منسوب ادھر کر دیا حالانکہ دونوں کے لیے ہے لیکن اس سے اشارہ اسی بات کی طرف وَلَهُنَّ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ تو جس کے لیے بچہ جنا گیا کیونکہ بچے کا جو تعارف ہے وہ باپ کے ذریعے چلتا ہے تو اس نسبت سے وہ بات کہہ دی ہے کہ جس کے لیے وہ بچہ جنا گیا ہے تو وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کا کھانا ان کا پہناوا قاعدے کے مطابق اس مرد کے ذمہ ہے جس کا بچہ ہے. لا تکلف نفس الا وسعها اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده نہ تکلیف دی جائے ماں بچے کی وجہ سے اور نہ جس کا بچہ ہے اس کو تکلیف دیا جائے اپنے بچے کی وجہ سے. یعنی دونوں ایک دوسرے کو ستانے کی کوشش نہ کریں بلکہ بہتر رویہ اپنائیں. فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ اگر بچہ یتیم ہو گیا تو پھر جو وارث ہے وہ اس کی کفالت کا وہ سارا بندوبست وہ کرے گا دودھ کا معاوضہ دے گا جو بھی کرے گا.
فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر دودھ چھڑانا چاہیں دونوں میاں بیوی تو ٹھیک ہے، ان کو اختیار ہے، کسی وجہ سے ہوگا، اور وہ وجہ طبی بھی ہو سکتی ہے، کوئی مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال تو شریعت کی طرف سے مقرر ہے، 2 سال بچے کو دودھ پلانا، لیکن کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے جس سے دودھ پہلے چھڑانا پڑے تو اجازت ہے، لیکن 2 سال کے بعد دودھ پلانے کا بظاہر نہیں ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی ناگزیر ضرورت ہو تو زیادہ سے زیادہ اس کو 2.5 سال تک لے جایا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید نے 2 سال کی مدت عمومی سطح پر مقرر کی ہے، عمومی قاعدہ ہے۔ فرمایا لا تکلف نفس فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، اور مشورے سے فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ، فلا جناح علیکم، پھر کوئی گناہ نہیں تم پر، اذا سلمتم، جب تم دے چکے ہو معاوضہ، یعنی اس کا ما آتیتم بالمعروف، جو تم نے دینا تھا قاعدے کے مطابق، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ 4 ماہ اور 10 دن عدت گزاریں گی، اپنے آپ کو روک کر رکھیں گی اور بڑی پابندی کے ساتھ۔ فرمایا فیضا بلغنا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، فلا جناح علیکم، پھر کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، جو وہ اپنے بارے میں کرنا چاہے معروف طریقے سے۔ معروف طریقہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ آگے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ نکاح کرو لیکن چھپی آشنائیاں مت کرو، چھپی آشنائیوں سے منع کیا ہے، کیونکہ اخلاقیات کو زوال ملتا ہے پوشیدہ تعلقات سے۔ پتنی خرابی کہاں تک پہنچتی ہے کسی کو کیا پتہ ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں اگر رشتہ داروں میں آنا جانا ہوتا ہے تو کسی کو یہ پسند ہے کہ میں فلاں سے نکاح کروں تو ماں باپ کو کہہ سکتا ہے، لیکن ایسے نہیں کہ رک کے دیکھتا رہے، فون کرتا رہے اور آپس میں پہلے سے ہی معاملات طے ہوتے رہے، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی، یہ اخلاقی دیوالیہ پن کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، کوئی گناہ نہیں تم پر اگر تم کسی کو منگنی کی پیشکش کرو، نکاح کی، اور سے فرمائش کرو کہ ہم یہ رشتہ چاہتے ہیں، ہمیں یہ رشتہ دیا جائے، فرمائش میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولیکن لا تواعدون سرا، لیکن چھپی آشنائی نہیں کرنی ہے، وہی بات جو بھی میں نے ذکر کی، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ کوئی اچھی بات کہو۔ ویسے بعض اوقات آدمی جب آپس میں آنا جانا ہو تو عادت او اکنن تم فی انفسکم، یا تمہارے دل میں یہ بات ہو کہ میں فلاں گھر میں رشتہ کروں گا، فلاں بچی اس کی بڑی اچھی سیرت ہے، اخلاق ہے، بڑی اس کی خوبیاں ہیں اس کے اندر، تمہیں یعنی ظاہر ہے کوئی ایسی چیز بنیاد بنتی ہے، تو اس بنیاد پہ اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن وہ بات جو میں نے ذکر کی کہ رک کے بھیج دو یا فون کر دو، اب تو رکو کا دور گزر گیا، اب تو موبائل نے بہت ساری منزلیں طے کر دی ہیں، اس لیے پوشیدہ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ دل میں اگر خواہش ہے تو کوئی حرج نہیں، اظہار کر دو تو بھی کوئی حرج نہیں، اظہار تو ظاہر ہے قاعدے کے مطابق ہی ہوگا، چھوٹے طریقے سے نہیں ہوگا۔ فرما ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور مت ارادہ کرو نکاح کا، عقدۃ النکاح، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، تو نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ دونوں کے تعلق کی گرہ باندھی جاتی ہے۔ فرمایا حتی یبلغ الکتاب وجلا، جب تک کہ کتاب اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ کیا مطلب ہے، کوئی بات سمجھیں؟ یعنی کسی عورت سے نکاح اس وقت تک، یعنی وہ عورت جو بیوہ ہے
یا متعلقہ کا بھی بات یہی ہے کہ اس کی بھی عدت کو اس نے بھی عدت گزارنی ہے. عدت کے دوران نہ کوئی اشارہ کیا جائے، نہ کوئی خفیہ رابطہ کیا جائے، اور نہ ہی اس سے کھلا اظہار کیا جائے. جب عدت گزر جائے اس کے بعد اظہار کر سکتے. عدت کے دوران اشارتاً کنایتاً کسی صورت میں بھی اپنی دلچسپی کا اظہار کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے جیو میں. فَاحْذَرُوا بس بچتے رہو، ڈرتے رہو کہیں حدود کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور جان لو اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے. لا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں تم پر ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن کہ اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو جن کو تم نے چھوا نہیں، یعنی خلوت سیاح نہیں ہوئی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی، تو ایسی عورتوں کو کوئی مجبوری بن گئی، حالات ایسے بن گئے طلاق دینی پڑ گئی تو دے سکتے ہیں. فرمایا اور تفریضوا لہن فریضہ یا تم نے ان کے لیے کوئی مار بھی مقرر کر دیا ہو. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ اور فائدہ دو ان کو وسعت والے پر اپنے حساب سے دینا ہے اور تنگ دست پر اپنے حساب سے دینا ہے. اب یہاں دو صورتیں ہیں. عورت سے نکاح ہوا مار مقرر نہیں ہوا ایک صورت، عورت سے نکاح ہوا مار مقرر ہو گیا. جس کا مار مقرر ہے نصف دینا پڑے گا، جس کا مار مقرر نہیں ہے اس کو کچھ دینا پڑے گا. بس اس طرح مسئلہ. عورت اپنی گھر نکاح ہو گیا تو ماں مقرر ہو گیا. یہ عورت پیکے یا نہیں آئی اس کی نہیں ہوئی پھر بھی مار دینا پڑتی. اسی کی بات کر رہے ہیں نا. عورت کا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی ماں باپ کے گھر میں ہے مار مقرر ہو گیا، نکاح ہو چکا، نکاح ہو گیا نا مار مقرر ہو گیا. اب کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ طلاق نوبت آ گئی طلاق دے دی گئی تو آدھا مار دینا پڑے گا، مقرر مار کا آدھا. رخصتی نہیں ہوئی لیکن مار آدھا دینا پڑے گا. اور مار مقرر نہیں ہوا تو پھر کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، جو تمہارا جی چاہے وہ دے دو. فرمایا کہ متاع بالمعروف فائدہ پہنچانا ہے قاعدے کے مطابق. حقا علی المحسنین حق ہے نیکوکاروں کا پر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اور اگر تم نے ان کو طلاق دی اس سے پہلے کہ تم نے انہیں مس کیا ہوا. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اور تاکہ تم نے ان کے لیے مار مقرر کر دیا تو پھر آدھا دینا پڑے گا. یہ صورت بعد میں بیان کی اور جس نے مار مقرر نہیں ہے وہ پہلے بیان کر دی. پھر نہ اللہ یافون او یافو الذی بیدہ عقدۃ النکاح مگر یہ کہ اگر بچی کے والدین کہیں کہ ہم نہیں لیتے کچھ بھی تو ان کو حق حاصل ہے کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی، حق اس کے ساتھ کوئی اس کا خلوت سید نہیں ہوئی اور مار بھی مقرر نہیں ہوا. تو اب اس کو جب طلاق ہو گئی تو اس کے جو وارث ہیں وہ اگر چاہیں تو کچھ لے لیں، مرد کو چاہیے کچھ نہ کچھ دینا، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں جی ہم کچھ بھی نہیں لیتے تو یہ ان کا حق ہے. فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ یہ کیا ہوگا او یا والذی بیدہ عقدۃ النکاح فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ پس آدھا جو فرض مقرر کیا تم نے الا ان یعفون مگر یہ کہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کا مار مقرر تھا کہ اگر وہ معاف کر دے یا اس کے جو وارث ہیں جن کے ہاتھ میں گرا ہے نکاح کی وہ معاف کر دیں کہ ہم آدھا بھی نہیں لیتے. والدین ہو گئے جی عورت کی شادی نکاح ہوا نہیں اپنے گھر ٹیکے ہی بیٹھی اس مار پر خامن کر وہ عدالت چلی گئی عورت ورنہ خامن کے رات بھی تھی خامن بھی کوشش کی چاہ کرنا کی وہی کوئی میں نکاح نہ دینا مار وہی سپریم کورٹ تک کیس ہوا حلیہ عدالت ہائی کورٹ تک مرد بھائی کیونکہ عورت نہیں ہوئی تو دیوار نہیں بن ہائی کورٹ نے لایا سپریم کورٹ بھی گیا شاہ صاحب چلی گئے
رپورٹ آ رہی ہے چلو باہر مقرر کر دیتا ہوں باہر اس نے دیکھے نا اسلامی جو یاد رپورٹ ہے کہ علماء مجھے اس صاحب رپورٹ آ نہیں جی، یہ تو بالکل صاف لفظوں میں لکھا ہے نا کہ آدھا مال مقرر ہو گیا، آدھا دینا پڑے گا۔ ہاں اگر اس کے بچی کے والدین جو ہیں یا وہ رسا جو ہیں وہ کہتے کہ ہم آدھا نہیں لیتے، ہم دیتے ہی نہیں ہیں، چلو بس بات ختم ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مطالبہ کریں تو آدھا دینا پڑے گا، اس کو ہر صورت دینا پڑے گا، شرعی حکم یہی ہے جی۔ فرمایا کہ بیدی عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ یا وہ عورت خود، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے قریب تر ہے، کیونکہ وہ عورت اس کے گھر تو گئی نہیں ہے، لہذا اگر تم نہ لو تو یہ زیادہ بہتر ہے، تو اگر لینے کا تقاضا کرے پھر آدھا دینا پڑے گا۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے اندر مہربانی اور فضل کو بھلاؤ نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک کا رویہ اپناؤ۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے آگئے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، حفاظت کرو نمازوں پر اور خاص طور پہ درمیانی نماز، اور اللہ کے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی اللہ کی فرما برداری اختیار کرو۔ احکام نکاح و طلاق و مار کے بیان میں نماز کا حکم بیان کر دیا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ کہیں کار دنیا میں کھپ کر نمازیں ہی نہ بھول جاؤ، ایک مفہوم تو یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نماز کا خیال رکھو، نماز تمہیں احساس دلائے گی، تمہارے اندر تقوی اور خدا خوفی پیدا کرے گی، تو تم زیادتی کرنے سے بچ جاؤ گے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کی نماز نے اس کو برائی سے نہ روکا اس کی کوئی نماز نہیں۔ تو اس لیے نماز کو بیچ میں لا کے یاد دہانی کرا دی کہ کار دنیا میں مصروف نہ رہو، اللہ کو بھی یاد رکھو، اور نماز کی صورت جو سب سے بہتر یاد کرنے کی صورت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو جس حال میں بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہو، جس حال میں بھی، سواری پہ ہو، میدان سے نکل رہے ہو، دشمن تعاقب میں ہے، کسی بھی مقام پہ ہو، کوئی ڈاکو پیچھے لگا ہوا ہے، تو گھوڑے پر سوار ہو، گاڑی پر سوار ہو، جدھر منہ ہے وضو ہے نماز پڑھ لو۔ پھر وہاں قبلہ رخ ہونے کی پابندی بھی نہیں ہے، اس کی وجہ اگر وہ قبلہ ڈھونڈتا رہے گا تو جس سے وہ بھاگ رہا ہے وہ پہنچ جائے گا، اس لیے اس کو اجازت دے دی کہ جس حال میں ہو جدھر کا بھی رخ ہے نماز پڑھ لو۔ یہ ہے دین کے اندر آسانیاں۔ فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب حالت امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے اس نے تم کو سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب اللہ نے تمہیں اپنی یاد دلائی، جس طریقے سے دلائی اسی کے مطابق اس کو یاد کرو۔ نماز کے وقت نماز ہے، اب نماز کے وقت کوئی تسبیح لے کر بیٹھ جائے اور کہ میں بعد میں پڑھ لوں گا، نماز ادھر جماعت کھڑی ہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، یعنی ہر ذکر کا اپنا ایک قاعدہ دستور، مقام اور مواقع ہے۔ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، ابھی تو 10 منٹ ہوئی، وصیت لازواجہم، وصیت کرنا ہے اپنے خاندوں کے لیے، متاعا الی الحول، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، کہ ان کو 1 سال تک تم نکالو گے نہیں، جن کے خاوند فوت ہو جائیں تو ان کی بیوہ کو 1 سال تک گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں تھی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر وہ خود چلی جائے اور کوئی اپنا فیصلہ کر لے تو ان کو اختیار ہے، یہ آیت کا مفہوم ہے، لیکن آیت وراثت نے ان کو اس حق کو ساقط کر دیا، کیونکہ پہلے وہ وارث نہیں تھی، جب وہ وارث بن گئی اور بیوہ ہو گئی تو اب مکان میں رکھنا کوئی پابندی نہیں ہے، ہاں کوئی اپنے تعلق سے
خوش اخلاقی سے رکھنا چاہے تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے، لیکن پابندی نہیں ہے کہ ضرور سال بھر اس مکان میں اس کو رکھا جائے، اس کے بجائے اس کو پورے ترکے میں وارث بنا دیا گیا، فوت ہونے والے کا جو ترکہ ہے اس میں اس کو وارث بنا دیا گیا۔ اب مکان کہاں اور ترکہ کہاں، تو حاجہ کا تو بہت فرق پڑتا ہے، اس لیے وارث ہی رہنا اس کا بہتر ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ الحمد